ہوتا ہے تو یہ درگزر کرتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں. اور ان کا نام عمران سر کلاس ہے اور خدا نے ان کو بہت ساری خدمات سے نوازا ہے، جو خدمتیں دے رکھی ہیں. اور میں بات کر رہا تھا آپ کو بہت اچھے گاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہیں موقع ملا پھر کبھی تو آپ کو ضرور ہم خدا کی ہم گستائش بھی کریں گے مل کر، کیونکہ میری جو سیٹنگ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو تبلا پلے کرتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ تو کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو ضروری ہے کہ جس کام کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے خدا کے کلام کو لے کر، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف فرما ہے پاک عمران سر کلاس. ہاتھ پہنانے کی تشریف لانے پر وہ سامنے ہیں اور پھولوں کا ہاتھ پہنا کر سیون کیسمیٹک کلیسیا کی طرف سے اپنی محبت کا اظہار کریں. جی سر یہ کیسے کلیسیا کو انتخاب کی یہ آپ کی محبت ہے جو آج ان کو دی جا رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر پھول کی قسمت میں کہاں رنگ محل ہے، کچھ پھول تو کھلتے ہی مزاروں کے لیے. پھول کی بات آ گئی تو مجھے بھی بڑی شاکی آ گئی. وہ کہتی ہے وہ تو پھول ہے، وہ تو خوشبو ہے، ہوا میں بکھر جائے گا، مسئلہ ہے پھول کا، پھول کدھر جائے گا. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ماسٹر اشرف چاوے ان کو مالا پہنانے کے لیے پھولوں کا ہاتھ پہنانے کے لیے ہمارے جناب اجازت ہے. تو آپ آئیں ان کو پھولوں کا ہاتھ پہنائیں اور اپنی محبت کا اظہار کر. درخواست کرتا ہوں اپنے پاسے عامر سردار سے وہ سامنے آئے. ان کو ہاتھ پہنانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں بھائی عاشق سے کہ وہ ان کو ہاتھ پہنائے. آپ کی زوردار تعلیم. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ لمحہ دیا ہے. اب وقت ہے وقت کو ضائع کیے بغیر، وقت بہت ہو چکا ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں آپ کی زوردار تالیوں میں پاسٹر عمران سردار سے جو آئیں اور قرآن کی خدمت کو پیش کریں. آپ کی زوردار قرآن کے مقدس اور میرا نام میں آپ سب کو سلام. شکریہ کہ آپ اس خوبصورت صبح کے لیے، صفات اور مقدس دن کے لیے، اور آپ سب مقدسین کے لیے جنہوں نے خدا کارمجان کے منصب بخشی اور جو موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے مقدس کلام کو سیکھ سکیں. میں شکر گزار آپ تمام شکریہ کلیسیا کا، خصوص اپنی جی بہن اباجی گپتا کا، اور اس طرح سے ہمارے ہم خدمت مسیح میں پیارے بھائی پاسٹر عامر سردار کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جن کی محبت سے، ان کی ساتھ سے یہ موقع ملا کہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے اور ساری خدمت کے لیے جو قرآن آپ کے وسیلے سے یہ بھائی عامر سے پہلے خدا کے قانون یہاں خدمت کرتے تھے، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اب
میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے قادم کو بھائی عابد کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے آپ کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے، اور میری یہ دعا کہ آپ خدا میں کرتے جائیں اور آپ کے وسیلہ سے اس علاقے اور شہر میں خدا کا نام کثرت کے ساتھ عزت اور جلال پائے۔ اس ساری محبت کے لیے جو آپ نے دی ہم دل سے شکر گزار ہیں، اور جب بھی کسی کلیسیا میں جاتا ہوں تھوڑی دیر تک ہار پہن کے رکھتا ہوں تاکہ یہ بھی کسی سے میں نے سیکھا کہ فوراً اتارنے نہیں چاہیے، کیپ اٹ دیئر فار سم ٹائم، تاکہ اس محبت کی جو قبولیت ہے وہ نظر آئے۔ سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین اس ساری عزت کے لیے جو آپ نے بخشی۔ آئیے، بے شک ہمارے خدا کا نام سب ناموں سے زیادہ عزت اور تعظیم کے لائق ہے، اور اس نے اپنے کلام کو جو ہے وہ معتبر ٹھہرایا ہے۔ ہم اس کلام کو سننے کے لیے اپنی توجہ اپنے دھیان کو لگائیں گے۔ آپ کی اجازت سے میں یہ ہاتھ اتار رہا ہوں، اور اس کو یقیناً جاتے ہوئے ہم ساتھ بھی لے کے جائیں گے۔ شکریہ۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں۔ خدا کے مقدس کلام کا جو حصہ آج کی صبح میں آپ سب کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، عہد جدید نئے عہد نامہ کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ، بک آف ریویلیشن، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 29ویں آیت تک ایک اقتباس میں آپ سب کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ خدا کے مقدس کلام نے جو لکھا ہے، اور خواتین کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور کتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اس سے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا۔ اور 28 میں لکھا ہے، اور میں اس سے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں۔ خدا کے مقدس کلام کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا، کاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب 18ویں سے 29ویں آیت، ایک لمبا پیسج ہے، and the text it has so many things in that۔ اس حوالے کے اندر بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو مد خاطر رکھتے ہوئے میں خاص طور سے اس کے 3 جو اسٹینزاز ہیں، 3 جو حصے ہیں، اس پر خاص آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ 25ویں آیت سے 28ویں آیت
के आखिर तक है। 25वीं आयत, फिर इसी तरह से 27वीं और आयत, 26वीं और 27वीं, और उसके बाद 28वीं आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम गौर से इस पर ध्यान लगाएंगे। एक दफा दोबारा से इस हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 25वीं आयत में लिखा है, अलबत्ता जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे थामे रहो, और जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करें, मैं उससे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। और 28वीं आयत है, और मैं उससे सुबह का सितारा दूंगा। इस हवाले से आज की सुबह जो प्यार मैं आपके साथ बांटने को है, वो क्या ये है कि खुदा ने मुझे और आप एज ए चर्च या कलीसिया के तौर पर उसने मुझे और आपको चुना, बुलाया, मखसूस और मुकर्रर किया। अंग्रेजी में मैं इसको कहूं तो मैं कह रहा हूं, यू आर हायर्ड बाय गॉड, और वी आर हायर्ड बाय गॉड। खुदा ने मुझे और आपको चुना और मखसूस किया है। जहां जहां उसने मुझे और आपको रखा है, जिस कलीसिया में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस शहर में, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज विल, ये उसके प्लान के मुताबिक है। और जो इस बात को समझते हैं, दे विल बी रिवॉर्डेड, वो खुदावंद से बदला पाएंगे। और इस ख्याल के साथ कि वी आर हायर्ड बाय गॉड, मैं आपकी तवज्जो इस कलाम की तरफ लगाना चाहूँगा। मुकद्दस मुकाशफा की किताब मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई है, और मैं थोड़ा सा इस किताब से मुताल्लिक आपके साथ शेयर करता चलूं। अंग्रेजी में लफ्ज़ रेवलेशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अंग्रेजी वर्ड रिवील से है। रिवील का मतलब है जाहिर करना, जाहिर किया जाना। और खुदा के कलाम के इस हिस्से में खुदा की वो सीक्रेट्स, खुदा के वो भेद जो कलीसिया के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हैं, they are shared in this book, वो इस किताब के अंदर जाहिर किए गए हैं। सो मुकाशफा का सादा मतलब यह है भेदों का अयान किया जाना। खुदा जो कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए इन फ्यूचर मंसूबा रखता है, उसको खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से हम सब पर जाहिर किया है। चर्च कलीसिया का जो मुस्तकबिल इन फ्यूचर, हाउ गॉड इज प्लानिंग कि कलीसिया किन हालात से, किन चीजों से गुजर कर एट द एंड ऑफ द डे वो किस तरह से खुदा के जलाल या उसकी सितारिश का बाइस बनेगी, उसका इजहार इस किताब के अंदर है। लिखे जाने के एतबार से, सिर्फ के एतबार से इस किताब को एपोकलिप्टिक लिटरेचर कहा जाता है, जिसको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये तसव्वुराती, ये मुकाशफी या अलामती कलाम है। और इसकी जुबान जो है वो सिंबॉलिक है बहुत सारी, इसलिए जब इसकी तफसीर पर हम गौर करेंगे तो मुझे और आपको ये ज़हन में रखना है कि हर एक बात जो यहाँ पर है, हम उस हर एक बात को लिटरल नहीं ले सकते जैसे यहाँ लिखा है। इसका मतलब है इससे खुदा की कुछ मुराद है, इसमें खुदा का कोई भेद है जो खुदा मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। और यूहन्ना को ये कलाम भी रोया, मुकाशफा या अलाम के तौर पर मिला है, इसलिए मुसन्निफीन मुफक्किरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, इट इज कॉल्ड एन एपोकलिप्टिक लिटरेचर। ये मुकाशफाती, तसव्वुराती, अलामती कलाम है, इसलिए मुझे और आपको इसको इसी तनाज़ुर में देखना और समझना भी है। और इस तरह के लिटरेचर होने की वजह से इस किताब की जो तफसीर, जो इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, उन पर भी बहुत दफ़ा मुख्तलिफ साथियों की आरा या उनकी राय मुख्तलिफ है, और कई स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ इस किताब की तफसीर जो है वो की जाती है। और सारे मसीही तो इस किताब को पढ़ने से भी डरते रहते हैं कि पता नहीं है ना, क्योंकि जिस अंदाज में ये कलाम यूहन्ना को मिला और उसने खुदा के रूह की मदद से इसको तहरीर फरमाया, तो कई दफ़ा पढ़ते हुए क्योंकि इसके अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसलिए कई साथी जो है वो इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। और यकीनन ऐसे ख्याल भी पाए जाते हैं कि कई लोगों ने, है ना,
کئی اور طرح کے معاملات کرنے کے لیے بھی اس کتاب میں سے کئی ایک اقتباس کو گرد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے کئی ایک دوسرے مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ اس کتاب کے بارے میں ہے۔ لیکن خدا کا یہ کلام جہاں خدا اپنے ازلی منصوبہ کو کلیسیا کے لیے رکھتا ظاہر کرتا ہے، it should be a great encouragement۔ یہ خدا کے کلام کی زبردست حوصلہ افزائی میرے اور آپ کے لیے تسلی، اور میرے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں خدا کے واضح منصوبہ جات اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اس لیے بغیر خوف کے خدا کے کلام کو ہم سمجھیں، اس کو پڑھیں، and let us see کہ how God wants us as a church to function in this world، اور اس کے بعد بھی کلیسیا کا جو مستقبل ہے اس کے لیے خدا کا کیا منصوبہ ہے۔ بے شک یہ لمبا مضمون ہے، لیکن میں خاص طور سے آپ کی توجہ اس خیال کی طرف جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے دل میں ہے، I believe God has given that، وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کی جو 7 آیت ہے وہ پہلے باب کی 19ویں آیت ہے، جہاں لکھا ہے اور جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اور جو باتیں ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ تو پہلے باب کی 19ویں آیت ہے، جس سے آسانی سے ہم اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو باتیں تو نے دیکھی ہیں، جو باتیں ہیں اور جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ the things in the past, the things in the present and the things in the future۔ آسانی سے اس کتاب کو ہم ماضی، حال اور مستقبل کے طور پر بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا باب اس کتاب کا جو ہے وہ ان باتوں کے بارے میں جو باتیں تو نے دیکھی ہیں، things about the past، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا اور تیسرا باب جو ہے جو باتیں ہیں things about the present، ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور پھر چوتھے باب سے لے کر 22ویں باب تک ایک بڑا حصہ اس کتاب کا جو ہے that talks about the things about future، جو مستقبل میں چیزیں کلیسیا کے وسیلہ سے یا کلیسیا کے لیے خدا رکھتا ہے، ان سب کا اظہار یہاں پر ہے۔ لیکن آج جس کلام کے حصہ پر ہم غور کر رہے ہیں وہ اس حصہ میں سے ہے the things which are present، جو آج کی، جو مستقبل کی نہیں، جو ماضی کی نہیں، بلکہ اس وقت کلیسیا جس دور میں ہے یا کلیسیا سے جو خدا کی توقع ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے۔ 7 کلیسیاؤں کو اس وقت ایشیا، وسطی ایشیا میں یوحنا نے یہ خط لکھا تھا، لیکن ایز جنرل یہ تمام ایمانداروں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ اور تھواتیرا ان کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا ہے جن کے نام خدا کا یہ کلام یوحنا کی معرفت دیا گیا۔ اب اس بات کی طرف ہم چلیں کہ اگر خدا نے کلیسیا مقدسین کو، مجھے اور آپ کو چنا اور بلایا، تو جب تک خدا کا وہ مقصد جو اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے وہ پورا نہ ہو لے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو اس طرح سے فنکشن کرنے سے روک نہیں سکتی۔ جس مقصد کے لیے خدا نے کلیسیا کو دنیا کے اندر رکھا ہے، جب تک خدا کا وہ مقصد کلیسیا کے وسیلہ سے، آپ کے میرے وسیلہ سے پورا نہ ہو لے، nobody has any authority کہ وہ مجھے اور آپ کو یعنی کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو اس مقصد کو حاصل کرنے سے روک پائے۔ اس خیال کے ساتھ دیکھیے کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ یوحنا جو اس کلام کا تحریر کرنے والا ٹھہرا ہے، خدا کا یہ کلام خدا کے روح کی ہدایت سے یوحنا پر نازل ہوا ہے، اور یہ وہ یوحنا ہے جو یسوع کے شاگردوں میں سے وہ شاگرد ہے جسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شاگرد ہے جس کے بارے لکھا ہے یسوع بھی اس سے محبت رکھتا تھا۔ خدا کے یسوع کے شاگردوں میں یہ وہ شاگرد ہے جو یسوع کی خدمت میں ساتھ ساتھ رہا ہے۔ جب قانا گلیل کے اندر یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کیا، جان یوحنا وہاں تھا، اس نے یسوع کی قدرت کو دیکھا ہے۔ جب وہ مختلف جگہوں پر خدا یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، گھوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کو بہرائی بخشی ہے، لنگڑوں کو اس نے چلایا ہے، ان سارے معجزات
ان سارے کاموں میں خدا کی قدرت کو یوحنا نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اینڈ ہی ہیڈ سین کہ خدا کی قدرت اس کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کس طرح دنیا میں سرایت کرتی اور بڑھتی جاتی ہے. اس لیے یہ شخص جو ہے یہ خدا یسوع کی محبت میں گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لکھا ہے یہ وہ شخص ہے جب یسوع بالا خانہ کے اندر تھا اور بالا خانہ میں اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور آخری فسح سے پہلے جب وہ کھانا کھا رہے تھے آخری فسح کھاتے ہوئے لکھا ہے یوحنا یہ وہی شاگرد ہے جس نے یسوع کے سینے کا سہارا لے کر اپنا بازو ایسے رکھ کر اس نے اپنا کان یسوع کے سینے پر رکھا تھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے اس سے پہلے کہ یسوع ارشاد اعظم دیتا اس نے پہلے سے یسوع کے دل کی دھڑکن کو سن لیا تھا. خدا کے دل کی دھڑکن کیا ہے, خدا کیا منصوبہ رکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جان ہیز ہرڈ the voice, the heartbeat of Christ کہ وہ کیا پلان کے کس مشن کے ساتھ اس دنیا میں ہے. اور اس وقت سے لے کر دیکھیے جب یسوع کو پکڑوایا بھی گیا, یسوع کو مصلوب بھی کیا گیا, we see کہ یوحنا ان حالات میں بھی وہاں پر کھڑا ہے. خاص طور سے جب یسوع مصلوب کیا گیا وہ صلیب کے اوپر ہے, تو that is the disciple standing over there. اور اسے یسوع نے, بے شک اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں, لیکن یسوع نے اسے اپنی ماں کی ذمہ داری سونپی. اور لکھا ہے یوحنا نے بھی زندگی کی آخری سانس تک مریم کی خدمت کی اور ماں کے طور پر اس کی ٹیک کیئر وہ کرتا رہا ہے. لیکن خاص بات ایسا لگتا ہے یسوع کی قدرت, یسوع کے کام, یسوع کے معجزات, یسوع کا مشن یوحنا کے اندر سمو گیا ہے. اور مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد اس مشن کو, اس خدمت کو آگے لے کر جانے میں یوحنا جو ہے وہ رکا نہیں ہے. یسوع کے آسمان پر چلے جانے کے کم از کم 60 سال بعد تک یوحنا جو ہے وہ اس انجیل کی منادی کرتا رہا, اس خوشخبری کی منادی کرتا رہا جس کو لے کر یسوع اس دنیا میں آیا تھا. اور اس کتاب کے لکھے جانے کا جو سن ہے وہ تقریباً 95 یا 96 عیسوی ہے. یسوع کے آسمان پر چلے جانے کے تقریباً 60 سال کے بعد یہ کلام یوحنا کی معرفت لکھا گیا ہے. 5 کتابیں نئے عہد نامہ میں یوحنا نے تحریر کی ہیں. یوحنا کی معرفت انجیل, 3 خطوط اور پھر 5ویں یہ کتاب, یہ لیٹر جسے مکاشفہ کی کتاب کہا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوحنا یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے یسوع کی اس قدرت کا بھی تجربہ کیا جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. اور یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے یوحنا کے اوپر بھی یسوع کی ریزوریکشن پاور, ریزوریکشن کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا, ہے نا. تو وہ مسیح کی وہ قیامت, مسیح کی وہ قدرت جو اسے زندگی بخشتی ہے ہر طرح کے حالات میں, that is imparted to John as well. اس کی وجہ کیا ہے کہ یوحنا سارے شاگردوں کے اندر واحد اکیلا وہ شاگرد ہے جس نے اپنی طبعی موت پائی تھی. باقی تمام کے تمام شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع کی گواہی دیتے ہوئے شہادت کے درجہ کو پہنچے ہیں. لیکن جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں, جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, بالخصوص کلیسیا پاکستان جس حالات میں اس ملک کے اندر ہے, یہاں پر کس طرح سے بارہا ہم خوف و خطر کے اندر رہ کر خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں, وہاں دیکھیے یوحنا وہ مثال ہے جو میری اور آپ کی دلیری کا باعث ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے یوحنا کو روکنے کی, یوحنا کو مارنے کی, یوحنا کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. He was persecuted much more than other disciples. باقی شاگردوں کی نسبت یہ وہ شخص ہے جس نے ایون زیادہ تکلیف اور اذار رسانی اٹھائی. لیکن غور کیجئے جس مقصد کے لیے خدا نے اسے چنا اور بلایا, جب تک خدا نے وہ مقصد اس سے پورا نہیں کر لیا وہ مارا نہیں جا سکا, نہ وہ قتل کیا جا سکا. خدا نے اسے اس کی طبعی موت بخشی تھی. بات کیا ہے, اس وقت جو رومی حکومت ہے وہ اس شخص سے بڑی ناراض, وہ شخص سے بڑی ناراض ہے. They are very mad at John, اس لیے کہ وہ مسیح کی خوشخبری دینے سے, وہ مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے
वो गैर कौमों के अंदर जाकर लोगों को मसीह से मुतारिफ कराने से बाज नहीं आता, वो रुकता नहीं है, उसे बार बार वार्निंग दी गई है, उसे बार बार रोका गया है, उसे बार बार डराया और धमकाया गया है, but he has never stopped sharing the gospel with people। इसलिए रूमी हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत है, उसने लिखा है they tried to stab him, उन्होंने उसे कत्ल करना चाहा था। बेशक इस कोशिश में यूहन्ना को जख्म जरूर आए, लेकिन लिखा है यूहन्ना जिंदा बच निकला था, यूहन्ना मरा नहीं था। इसके बाद रोमी हुकूमत ने एक और कोशिश की। अगर कभी आप किताब पढ़ के देखें शहीदाने रोम, या जब रोम जल रहा था तो किस किस तरह की इज़ार सानियां मसीह पर ईमान रखने वालों को उस हुकूमत ने दी थी। उनमें से एक ये थी जो यूहन्ना पर अप्लाई की गई। लिखा है उन्होंने एक बड़े कड़ाह के अंदर तेल गर्म किया, और चूंकि यूहन्ना मसीह की गवाही देने से बाज नहीं आता, इसलिए दे ट्राई टू फ्राई हिम, उन्होंने उस तेल के अंदर उसको भून डालना चाहा। और लिखा है जब यूहन्ना को पकड़कर रोमी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक उस खौलते हुए कड़ाह के तेल के अंदर भी डाला गया, वहां से भी वो बच निकला था। वहां पर भी वो जिंदगी जो है, वो रेज़रेक्शन जो मसीह की है, वो उसके अंदर नजर आती है। और ऐसा लगता है जिस तेल के अंदर उसे जलाया जा रहा है, बिलखसूस वो तेल जिससे वो मसा किया गया, या वो तेल जो उसके ऊपर है, उसकी हरारत उससे कहीं ज्यादा है, जिस तेल में उसे जलाने की, उसे फ्राई करने, उसे भूनने की कोशिश की जा रही है। जो आग उसके अंदर लगी हुई है, उस आग की तपश, हरारत उस आग से कहीं ज्यादा जिसमें उसको जलाने की कोशिश की गई है। इसलिए कोशिशों के बावजूद जॉन वाज नेवर स्टॉप बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वो अगला काम उस पर अप्लाई किया गया है। और इस किताब को लिखते हुए यूहन्ना के बारे में लिखा है, रोमी हुकूमत ने ये सोच लिया कि ये मसीह की गवाही देने से बाज नहीं आता, ये लोगों को मसीह के बारे में बताने से बाज नहीं आता, इसके वसीला से मसीह के पैरोकार बढ़ते जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमने इसको कत्ल करने की कोशिश की, हमने इसको तेल में भूनने की कोशिश की, लेकिन ये मरता नहीं है, ये रुकता नहीं है। The third method they applied, उन्होंने उसको आइसोलेशन में, बिल्कुल एक अलग थलग मकाम पर, एक जजीरे में जिसका नाम पतमस है, वहां पर कैद कर दिया था। और ऐसा कि कोई उससे बात न कर सके, कोई उससे मिल न सके, कोई उसके कलाम को, उसकी बात को सुन न सके। लेकिन लिखा है उसने कहा इस किताब के पहले ही बात में, यीशु पर ईमान और उसकी गवाही की वजह से जब मैं जजीरा पतमस के अंदर कैद कर दिया गया था, उस वक्त खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर मुझ पर वो बातें जाहिर की जिनका जल्द वकूअ में आना जरूर है। और ऐसा लगता है उस आइसोलेशन में भी गॉड हैज नेवर लेफ्ट हिम, गॉड हैज नेवर फॉरसेकन हिम। और वहां लिखा है खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। कोशिश के बावजूद इस कलाम का रेवलेशन रोका नहीं जा सका। आज देखिए 2000 साल के बाद भी हम कलीसिया इस पुलपट से इस कलाम की, इस बात की शहादत देते हैं कि दुनिया की कोशिशों के बावजूद खुदा के इस बंदा का और उसके वसीला से वो खिदमत जो खुदावंद यीशु की है, उसे रोका नहीं जा सका। खुदा का कलाम कलीसिया के लिए आज भी मेरे और आपके लिए एनकरेजमेंट का बायस है। और वो मिशन जो मसीह के साथ, रसूलों के साथ जिसका आगाज हुआ, आज भी वो मिशन, आज भी वो काम कलीसिया के वसीला से जारी और सारी है। सो मतलब क्या है, इफ गॉड हैज कॉल्ड अस, इफ गॉड हैज टेकन अस, इफ गॉड हैज हायर्ड अस, तो फिर जब तक खुदा का मकसद मेरे और आपके वसीला से पूरा ना हो ले, दुनिया का कोई इंसान, जहन्नम का कोई शैतान और ना ही आसमान का कोई फरिश्ता मुझे और आपको उस खिदमत को पूरा करने से रोक सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए दिलेरी के साथ, मेरी बहनों, आइए कुव्वत के साथ, आइए खुदावंद के जोर में उस खिदमत को, उस काम को, उस ईमान को जिसमें खुदा ने मुझे और आपको कायम किया है, हम उसके जोर में आगे बढ़ते जाएं। देखिए दुनिया की डूबतें और किसी तरह की इज़ारसानी, इब्लीस की चालें, कुछ भी कारगर नहीं हो सकता। इफ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर कॉलिंग,
अगर अपनी खुलाहट को मैंने और आपने पूरे तौर से पहचाना है तो फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे और आपको खुदा के उस मकसद को पूरा करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए आइए खुदावंद में हम आगे बढ़ते जाएं खुदावंद के जोर में। इसलिए क्या कहा यहाँ पर 25वें आयत आगे आयात बीच में है, मैं थोड़ा सा लेकिन उस पर भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। लेकिन क्या यहाँ पर कहा गया है? थवातीरा की कलीसिया को 18वीं आयत में लिखा है, थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और जिसके पांव खालिस पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है। इस किताब के अंदर 18वीं आयत में यीशु के लिए ये टाइटल खुदा का बेटा, ये वाहिद जगह है इस पूरी किताब में जहां पर उसके लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया गया, खुदा का बेटा। बाकी जगह पर इब्ने आदम अक्सर जगहों पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर खास तौर से ये वाहिद इस पूरी किताब में जगह है जहाँ यीशु के लिए ये टाइटल, वो खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और जिसके पांव खालिस पीतल की मानद हैं, वो ये फरमाता है। वो क्या फरमाता है? थवातीरा शहर के बारे में अगर हम बात करें तो ये शहर जो है ये एक सेकुलर शहर, सेकुलर शहर से मुराद ये है यहाँ पर लोग जो हैं वो मजहबी एतबार से बहुत कमजोर, खासतौर से क्रिश्चियन मसीहियत, ये बिल्कुल छोटे पैमाने पर थोड़े से लोग इस शहर के अंदर एक कलीसिया की सूरत में हैं और वहाँ पर बाकी जो है वो लीलन का, वो ऊन का और कपड़ों को रंगने का जो है ये बिजनेस अरूज पर है। हमाम की किताब जब हम पढ़े 16वें बाब में एक बहन का जिक्र है जिसका नाम है लुदिया, और वो भी उस थवातीरा के शहर में तजारत की गर्ज से जाती थी। जब पौलुस रसूल उससे मिला था और पौलुस के वसीला से कलाम को सुनकर वो औरत ईमान लाई थी। बेसिकली वो फिलिप्पी के शहर की रहने वाली थी। गौर कीजिए, ये शहर जो है वो वैसे तो कई एक एतबार से तरक्की का मरकज है, लेकिन रूहानी एतबार से ये तनज़्ज़ुली का शिकार है। थोड़े से ईमानदार वहाँ पर कलीसिया की सूरत में रहते हैं और जब आप उनका आगे मुताला करें तो ऐसा लगता है कि चर्च के अंदर भी कई तरह की कमजोरियाँ बाकी हैं। और जो हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ उसके बारे में इतना कि वहाँ पर कहा गया, मसीह ने कहा वहाँ पर एक औरत है जिसका नाम एजबल है और वो अपने आप को नबिया कहती है। वो मुक़द्दसीन को हरामकारी करने की तरफ जो है वो तरकीब देती है, कुत्तों की कुर्बानियाँ खाने की तरफ जो है वो तरकीब देती है। और खुदावंद का कलाम उसके लिए ये है कि उस चर्च के अंदर कई लोगों ने उसकी तालीम को जो है वो उस पर कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। अगर आज के दौर हम इस बात को इस तरह से समझें तो फिर ऐसा लगता है चर्च के अंदर कल्टिक बिदती तालीम भी जो है वो दी जा रही है और वहाँ पर बहुत सारे ईमानदार जो हैं इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे आर एक्सेप्टिंग अ कल्टिक तालीम, दूसरे किस्म की बातें भी जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं उन पर भी जो है वो कलीसिया कंप्रोमाइज कर रही है। खुदा का कलाम उनके लिए है, मैं उनको तौबा की मोहलत दे रहा हूँ। बिलखुसूस ये पक्का नहीं हम कह सकते कि वो औरत जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है एक्चुअल में उसका नाम एजबल है या पुराने अहदनामा की वो औरत एजबल जो इस्राएल के एक बादशाह अखयब की बीवी, और लिखा है अखयब ने और उसकी बीवी एजबल ने जितनी बदी खुदा के हजूर में की थी उतनी बदी किसी और इस्राएल के बादशाह ने नहीं की थी। और एजबल जो कि गैर कौम से ब्याह कर वो इस्राएल में लाया था, उसने बाल की प्रस्तुत करने के लिए, उसने कुत्तों के आगे कुर्बानियाँ करने के लिए और हरामकारी करने के लिए अखयब बादशाह को भी और इस्राएल के लोगों को भी जो है वो उसने उकसाया था। मुमकिन है यहाँ पर भी थवातीरा के अंदर भी कोई ऐसी औरत हो जिसका नाम एजबल है। अगर ऐसा ना भी हो तो मुमकिन है ये सिर्फ उस तरह की चीजों की वजह से जो एजबल और अखयब ने रवा रखी थी उस वक्त इसराइल के अंदर, आज शायद वैसी बातें थवातीरा की कलीसिया के अंदर भी खुदावंद देखता है। इसलिए मुमकिन है जो भी औरत वहां पर
नबिया अपने आप को कह रही है, मुमकिन है ये सिर्फ टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, बट देयर इज सिमिलैरिटी कि उस वक्त इस्राइल के अंदर, आज थमातीला की कलीसिया के अंदर वैसी बातें, वैसी गलत तालीम, वैसी विरोधी तालीम का जो है वो अभी भी पाई जा रही है, और कलीसिया ज्यादातर उससे बॉदर नहीं है। इसलिए खुदा कह रहा है, ऐसी बातों से मैं कलीसिया को, ईमानदारों को तौबा करने की मोहलत दे रहा हूँ। जो ऐसी बातों को लीड करने वाले हैं, कलीसिया के अंदर गलत थियोलॉजी, गलत तालीम देने वाले हैं, वो उनके लिए भी कह रहा है, मैं तौबा की मोहलत दे रहा हूँ। अगर वो सुधरे, अगर वो बाज आए, अगर वो सही तालीम के पैरोकार ठहरे, आई विल ब्लेस देम। अगर ऐसा ना करें, मैंने उनके लिए सजा सोच रखी है। लेकिन कहा गया, जितने उस चर्च के अंदर ईमानदार, जिन्होंने उस गलत तालीम, जिन्होंने उस गलत किस्म की प्रैक्टिसेस को अपनाया नहीं है, उनके लिए खुदा का ये कलाम है कि खुदा का बेटा यीशु, जिसकी आंखें आग के शोला की मान, जिसके पांव खालिस पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है उन जेन्युइन ईमानदारों से, उन खास बरगज़ीदों से, उन मुक़द्दसीन से जो खुदा की सही तालीम की पैरवी करते और उसी को आगे उसका प्रचार भी करते हैं, उनके लिए कहा गया, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे सब्र को, तुम्हारी मुसीबत को, और यहां लिखा है, और मैं तेरे काम और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम तेरे पहले कामों से ज्यादा है। दैट इज द प्रेज, एप्रिसिएशन की बात खुदा यहाँ पर करता है, लेकिन उन ईमानदारों के वसीला से जो चर्च के अंदर जेन्युइन बिलीवर्स हैं, उनके लिए कहा गया, मैं तेरी खिदमत को, मैं तेरे कामों को, तेरे सब्र को और तेरी मोहब्बत को जानता हूं, और ये भी कि आपकी तुम्हारी खिदमत तुम्हारे शहर में और तुम्हारे वसीला से खुदा के काम में वो बेहतरीन होती जा रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। जितनी खिदमत, जितनी मुशक्कत, जितनी परसिक्यूशन तुमने पहले उठाई, जितनी सब्र कर्मी तुमने पहले दिखाई, आज तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मेहनत ये पहले से ज्यादा है। एंड आई रेकमेंड दैट, आई एप्रिशिएट दैट। मैं इसके लिए तुम्हें शाबाश देता हूं। लेकिन आगे लिखा है, वो सब जो गलत तालीम की चर्च के अंदर इस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उनके लिए भी लिखा है। लेकिन जेन्युइन बिलीवर्स के साथ 25वीं आयत में क्या कहा गया? अलबत्ता, अलबत्ता जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो, उसे मेरे आने तक थामे रहो। हालात तुम्हारे इर्द गिर्द बाहर के भी अच्छे नहीं है, बाहर से भी तुम्हें इज़ारसानी का, मुश्किलात का, खतरात का सामना है। चर्च के अंदर से भी गलत किस्म की तालीम, गलत किस्म की थियोलॉजी का तुम्हें सामना है। और इवन कई ईमानदार भी जो अपने आप को ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन गलत तालीम पर कंप्रोमाइज करके गलत प्रैक्टिसेस को आज भी अपने अंदर या चर्च के अंदर रखते हैं। खतरात, मुश्किलात, ओ चैलेंजेस का सामना तुम्हें है, लेकिन उसके बावजूद जेन्युइन बिलीवर्स के लिए खुदा का कलाम ये है, अलबत्ता जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे थामे रखो। बोलिए होल्ड इट, बोलिए मेरे साथ होल्ड इट। अंग्रेजी में क्या है? होल्ड इट। उसको थामे नहीं जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा है। खुशखबरी का वो कलाम, यीशु पर वो ईमान जो खुदा के खात्मों के आपको बताए जाने के वसीला से आपने पाया। खुदा आज की सुबह मुझे और आपको भी ये कह रहा है, हमारे हालात आज अफसोस के साथ और एक अलमिया के साथ, अगर मैं और आप गौर करें जिन कॉन्टेक्स्ट में खुदा ने मुझे और आपको रखा है, कलीसिया पाकिस्तान को भी बाहर से भी खतरात लाहक हैं, लेकिन चर्च के अंदर भी देखिए कई तरह के खतरात ने जन्म लिया हुआ। इसलिए जेन्युइन ईमानदारों के लिए उस ईमान पर कायम रहना, उस सच्ची तालीम पर कायम रहना जो खुदा उन्होंने पाई है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसको कायम रखना, उसको थामे रहना, ये आज की मेरी और आपकी जरूरत है। और आज इस इक़्तिबास से जो पहली बात और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे और आपके लिए है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है, अलबत्ता जो कुछ तुम्हारे पास है
उसे मेरे आने तक थामे रहे। और लिखा है जो गालिब आए और मेरे कामों पर और मेरे कलाम पर अमल करे और अपने कामों से उसका इजहार भी करे, when I will come back, जब मैं दोबारा आऊंगा मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, मैं इसका रिवार्ड उन्हें दूंगा आज भी और इवन आने वाले वक्त में भी। लेकिन सवाल ये है वो खुशखबरी, वो कलाम जो हकीकी है उसको थामे रहें हर तरह के हालात में, हालात के पेश नज़र, किसी लालच के पेश नज़र, किसी ज़रूरत के पेश नज़र, तोहरी तालीम, गलत तालीम या खुदा के उस मिशन को खौफ या परेशानी की वजह से रोकना नहीं, बल्कि इन हालात में खुदा के काम को जांपशानी से मुझे और आपको करते जाना है एज अ चर्च भी और एज इंडिविजुअल बलीवर्स भी। ये खुदा के मुझसे और आपसे तवक्को है, इसलिए वो कह रहा है होल्ड इट फास्ट, होल्ड इट, जो कुछ तेरे पास है मेरे आने तक उसे थामे रहे। एक दफा बोलिए होल्ड इट, बोलिए हाँ, ये अंग्रेजी में मैं कह रहा हूँ, एक दूसरे को बताइए और उससे बोलिए, सिर्फ इतना बोलिए थामे रहो। हाँ, एक दूसरे को देख के बोलिए, आप देखते नहीं एक दूसरे को। ये खुदा के कलाम की एनकरेजमेंट है आज मेरे और आपके। एक दूसरे को दोबारा से बोलिए होल्ड इट, ऐसे करके हाथ करेंगे, तो ऐसे करके एक दूसरे को देखिए और ऐसे जैसे किसी चीज को पकड़ते हैं। थामे रहने से मुराद क्या है, उसको पकड़ के रखो, है ना, बोलिए होल्ड इट। हाँ, ये हमेशा एक दूसरे को मुझे और आपको याद दिलाना, जब जब मसाइल, जब निज़ाम कलीसिया के ऊपर आए, खतरात अगर चर्च के अंदर से भी आए तो जब ईमानदारों को ये दूसरे अपने ईमानदार बहन भाइयों को बताना है होल्ड, बोलिए होल्ड, थामे रहिए, सच्ची तालीम पर कायम रहिए, घबराना नहीं है, हालात से खतरात से डरना नहीं है। अगर खुदा मेरे और आपके साथ है, अगर खुदा ने कलीसिया को इस कॉलोनी में, इस शहर में, इस मुल्क के अंदर कायम किया है, तो जो खुदा का मकसद कलीसिया को, आपको, मुझे और आपको कायम करने का है, जब तक वो मकसद मेरे और आपके वसीला से पूरा ना हो रहे, दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको डरा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, मार नहीं सकती। यूहन्ना ने ये साबित किया, थुआतीरा की कलीसिया को भी ये पैगाम है, आज इस कलीसिया के लिए भी खुदा का यही पैगाम है, होल्ड इट, बोलिए होल्ड इट, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे मेरे आने तक थामे रहो। आमीन। और अगर ऐसा करें, खुदा ने कहा, मसीह ने फरमाया, मैं जो ऐसा करेंगे आखिर तक, जो बर्दाश्त करेंगे और जो मेरे कलाम पर अमल करते हुए अपने कामों से उसका इजहार करेंगे, तो दुनिया पर जो मुसीबतों पर, जो अबलीस पर, जो बदन पर गलबा पाएंगे, सबको वो कह रहा है मैं उनके लिए दो काम करूंगा। 26 और 27 में लिखा है, जो गालिब आए, जो उस मिशन को, उस काम को जो उनको दिया गया उसे थामे नहीं, उनके लिए लिखा है 26 आयत में, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूं। क्या दूंगा? पहली बात, कहाँ इख्तियार है? सारे बोलिए, बच्चे बोले, कहाँ? कौमों पर। जो मेरे कहने के मुताबिक अमल करे, जो गालिब आए, उसके लिए पहली ब्लेसिंग क्या है? I will give them authority over nations. कौमों के ऊपर मैं उन्हें इख्तियार दूंगा। और एक और ब्लेसिंग यहाँ पर लिखी है 28 आयत में, मैं उसे सुख का सितारा दूंगा। पहली बात, पहली बरकत क्या है? उन सब के लिए जो इज़ार सानी के बावजूद, जो फिक्र और खतरात के बावजूद, जो चर्च के अंदर के मसाइल के बावजूद खुदावंद की जेन्युइन खिदमत करते हैं, जो हकीकी खुशखबरी के अलमबरदार हैं, ऐसे ईमानदारों के लिए जो साबित कदम रहेंगे, खुदावंद मसीह का ये कलाम है, मैं उन्हें कौमों पर इख्तियार दूंगा। आगे लिखा है वो किस तरह से हुकूमत करेंगे, लेकिन स्पेशली बात, दे विल हैव अथॉरिटी ओवर नेशंस, वो कौमों पर इख्तियार पाएंगे। और देखिए, जिसकी तरफ से ये कलाम है, जिसकी आंखें आग के शोला की मानो, जिसके पांव खालिस पीतल की मानो है, जिसने खुद मत्ती की मार्फत अंजीर में फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। I give that authority to you.
मैं ये इख्तियार तुम्हें देता हूँ, इस इख्तियार के साथ तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। वो यीशु जिसके पास सारी कायनात का इख्तियार है, वो कह रहा है मैं तुम्हें कौमों पर इख्तियार दूंगा, उनको जो मेरे कामों के मुआफिक, मेरे कलाम के मुआफिक आखिर तक अमल करे, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो कायम रहे, जो थामे रहे, जो कुछ उसे बख्शा गया है। He will have authority, they will have authority, she will have authority over nation, कौमों के ऊपर उनको गुलाम की तरफ से इख्तियार दिया गया है। और देखिए मेरे और आपके इस इख्तियार की तस्वीर क्या? आज भी बेशक इस मुल्क के अंदर हम थोड़े, लेकिन गौर कीजिए इस मुल्क के अंदर जितनी कौमें बसने वाली हैं, उन कौमों को जिंदगी देने का, अबदी और हमेशा की जिंदगी देने का, पा लेने का जो राज है, जो खुशखबरी है, वो मेरे और आपके पास है। और चर्च दुनिया के अंदर वो अदारा, दुनिया के अंदर वो इंस्टीट्यूशन है जिसको खुदा ने ये इख्तियार बख्शा है कि उसके वसीला से दुनिया की कौमें और कबीले जिंदगी पाए, नजात पाए और वो खुदावंद के कदमों में आ जाएं। और कोई कुव्वत और कोई अदालत और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंफरादी शख्स, कोई ऐसा ग्रोह नहीं जिसके पास ये इख्तियार हो। खुदावंद ने ऐसा इख्तियार कलीसिया को बख्शा है, उसके वसीला से आज भी दुनिया की कौमों और कबीलों के अंदर जिंदगी का वो बरकत का कलाम जारी है। इसलिए खुदावंद कह रहा है मैं इख्तियार तुम्हें दूंगा। और अगर मैं और आप गौर करें थोड़ी देर के लिए, तो खुदा ने ये इख्तियार अब भी मुस्तकबिल में इनटू इट्स फुलनेस हम इसकी कामल तस्वीर देखेंगे। खुदावंद मसीह ने क्या कहा? जब मैं आकर खुदावंद की बादशाहत को कायम करूंगा तो वो सब के सब जो गालिब आएंगे वो खुदावंद के साथ उस बादशाहत का हिस्सा होंगे, वो कौमों की अदालत करने वाले ठहरेंगे। They will have part in the kingdom of God। रास्तबाजी की बादशाहत में उनको मुख्तलिफ औहदों पर फाइज करके खुदावंद अपने इख्तियार के साथ उन्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये उसकी फुलनेस है, that will take place in future। लेकिन आज भी, आज के इस दौर में भी देखिए, अगर मैं और आप देखें तो चर्च या एज बिलीवर खुदा ने मुझे और आपको ये इख्तियार दिया है अपने कलाम के वसीला से, अपनी और खुशखबरी के वसीला से कि हम लोगों की रिहाई का, नजात का बायस बन सकते हैं, उनकी रहनुमाई करने वाले हैं कि यीशु पर ईमान के वसीला से वो नजात और जिंदगी पाएं। इसलिए गौर कीजिए ये इख्तियार अब भी मुझे और आपको दिया गया है। इसकी प्रैक्टिस आज भी मैं और आप जो है उस दुनिया के अंदर कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो सब जो जेन्युइन बलीवर्स हैं, जो हकीकी ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदावंद की हकीकी तालीम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो मुश्किलात से घबराते नहीं, जो मुश्किलात को देखकर डर नहीं जाते, जो इस मुल्क को छोड़कर भागने का नहीं सोचते, जो इस खिदमत से पीछे नहीं हटते, जिन्हें मौत से डर नहीं लगता, वो जो यीशु की रेज़रेक्शन का तजर्बा रखते हैं, वो सब जो इस ईमान में कायम किए गए हैं कि हम वो लोग हैं जिन पर से खुदा ने मौत का इख्तियार खत्म कर दिया है, वो सब के सब आज भी इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर ऐसा इख्तियार पाते हैं। खुदावंद पे उसको एक्सरसाइज करते हैं कि कौमों से, कबीलों से लोग उनके वसीला से खुदावंद का कलाम सुनकर नजात पाते हैं। इसलिए आज भी तजर्बा हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी फुलनेस का तजर्बा जो गालिब आएंगे, जो आखिर तक इसमें कायम रहेंगे, जो उस खुशखबरी के कलाम को, उस खिदमत को जो उन्हें दी गई उसे थामे रहेंगे। अगली बात, आखिरी बात क्या है? 28वीं आयत में खुदावंद ने कहा जो गालिब आए, मसीह ने फरमाया जो गालिब आएंगे मैं उनके लिए और क्या करूंगा? मैं उन्हें सुबह का सितारा दूंगा। बोलिए क्या दूंगा? और यहां लिखा है I will give them a morning star, the morning star। मैं उन्हें सुबह का सितारा दूंगा। आप में से कितने
सुबह अर्ली उठने वाले मनेरे कौन कौन उठ जाए, है ना, चंद साथी। ओके, प्रेज गॉड। अगर आप बहुत अर्ली, है ना, जब अंधेरा खत्म हो रहा हो और दिन निकल रहा हो तो मशरक की तरफ, पंजाब वाले ज़्यादा लोग बेहतर समझते हैं, मशरक की तरफ वो एक बड़ा सितारा हमें नजर आता है जिसे सुबह का सितारा कहा जाता है, एक रोशन चमकदार है। जो बच्चे नहीं जल्दी उठने वाले वो भी इसका तजर्बा करके देखिएगा, मशरक की तरफ आपको एक बड़ा सितारा जो है वो नजर आता है साइंसी एतबार से। और कई दफ़ा हम रेफर करने के लिए उसको सुबह का सितारा जो सबसे ज़्यादा सुबह सुबह चमकदार नजर आता है, मॉर्निंग स्टार उसे कहा गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर 22वें बाब मुकाशफा की किताब में भी यीशु के लिए ये टाइटल इस्तेमाल हुआ, उसे भी सुबह का सितारा कहा गया। यीशु क्या कह रहा है यहाँ पर, वो खुद जो सुबह का सितारा है वो कह रहा है मैं तुम्हें सुबह का सितारा दूंगा। वो सब जो गालिब आएंगे, वो सब जो कलाम पर अमल करके आखिर तक जो बर्दाश्त करेंगे। ओके, यहाँ पर लफ्ज सुबह का सितारा या मॉर्निंग स्टार अगर हम हिब्रू लिटरेचर में, चूंकि इस लफ्ज का जिक्र जो है वो हिजकिय्याह नबी के सहीफा में, वो यसाया नबी की किताब में भी आया, इसलिए अबरानी वतन में और वोल्गेट जो बाइबल मुकद्दस का एक तर्जमा है उसमें भी जब आप इसको देखें तो वहां पर सुबह के सितारे के लिए जो ओरिजिनल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लूसीफर। क्या है, क्या है लफ्ज, सारे बोलिए। हाँ, याद आ रहा होगा लूसीफर क्या है। हाँ, लूसीफर कौन है? अबलीस। ओके, ये सारे छोटे बच्चों को पता है। तो क्या खुदावंद यहाँ ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अबलीस दूंगा जो आखिर तक बर्दाश्त करे? नहीं, वो कह रहा है मैं तुम्हें सुबह का सितारा दूंगा। गौर कीजिए, लेकिन जहां पर लफ्ज लूसीफर इस्तेमाल हुआ, ये लूसीफर वो टाइटल है, ये वो नाम है उस फरिश्ते का जिसे खुदावंद ने अपना इख्तियार दिया, जो उस वक्त इनटू स्पिरिचुअल रेलम इस कायनात के अंदर जिसके पास खुदावंद के बाद सबसे ज्यादा इख्तियार दिया गया था, उस वक्त वो फरिश्ता नूरानी फरिश्ता था। देखिए, बेशक हम आज जानते हैं ये लफ्ज, ये टाइटल अबलीस के पास था, लेकिन गौर कीजिए उसका ये टाइटल उसके अबलीस बनने से पहले का टाइटल। लूसीफर ये खिताब, ये टाइटल उसका उस वक्त तक था जब तक वो खुदा की हजूरी में, खुदा की ताबेदारी में, खुदा की फरमाबरदारी में उसके इख्तियार को खुदा की मर्जी से इस्तेमाल करने वाला। और क्या लिखा है यसाया नबी के सहीफे में, हिजकिय्याह नबी के सहीफा में 28वां बाब और 14वां बाब आप पढ़ के देखिए दोनों किताबों का, वहां पर पिक्चराइज किया गया उस फरिश्ते के बारे में। लिखा है कीमती पत्थरों से उसकी आराइश की गई, खूबसूरती में वो बाकमाल, दानिश में वो बाकमाल, हिकमत उसको दी गई है और इख्तियार उसके पास है, इसलिए उसे नाम दिया गया है लूसीफर। क्या नाम दिया गया? लूसीफर। यहाँ उर्दू में सुबह का सितारा। लेकिन बात क्या है, अब खुदावंद मुझसे और आपसे ये कह रहा है वो जो गालिब आएंगे मैं उन्हें सुबह का सितारा दूंगा। गौर कीजिए, ये लक़ब उस वक्त तक उसके पास है जब तक कि वो अपने उस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की तरफ राग़िब नहीं हुआ। लेकिन बाइबल बताती है उसके दिल में गरूर समा गया ये नूरानी फरिश्ता जिसकी साख्त ऐसी है कि वो खुदा की हजूरी में खड़ा होकर खुदा की हम्द और सिताइश करता है, जो बाकी मखलूकात के सामने खुदा का नुमाइंदा है। सब इख्तियार खुदा ने उसे दिया हुआ है और बाकी तमाम फरिश्ते उसके सामने आकर उसे सजदा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसने इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और उसके दिल में गरूर समा गया और उसने कहा मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊपर बना लूंगा, अब मैं अपना
अपना इख्तियार जो है वो खुदा से भी बड़ा कर लूंगा। उसने उस दिए गए इख्तियार को अपना इख्तियार मानकर ये समझ लिया कि वो खुदा से भी ऊपर है, वो ऊपर से नीचे गिरा दिया। वो टाइटल जो लूसीफर है खुदा ने उससे वापस ले लिया। उस फरिश्ते के बारे में लिखा है खुदा ने अपनी हम और सितारिश के लिए उसे खड़ा किया, उसे मामूर किया था। और बताया जाता है कि जब वो गाता, उस फरिश्ते के बनाए जाने की साख ऐसी है जैसे उसके अंदर बहुत सारे पाइप फिट हैं। जब वो अकेला ही गाता ऐसा लगता है पूरी दुआएं गा रही है। एक बड़ा मजमा खुदा की तारीफ और हम कर रहा है। ऐसा इख्तियार, ऐसी क्वालिटी, ऐसी खूबसूरती, ऐसी हिकमत खुदा ने उसे बख्शी। एंड ही गेव हिम टाइटल लूसीफर। लेकिन जब उसके अंदर गुनाह आ गया, जब उसके अंदर गुरूर समा गया, खुदा ने वो सारा कुछ उससे वापस ले लिया और उसे उस मिट्टी में फेंक दिया, खाक के अंदर, उसको ये बताने के लिए कि ये इख्तियार तेरा नहीं है, ये इख्तियार मेरा है, ये मैंने तुझे दिया है। अगर तू इसका गलत इस्तेमाल करेगा, आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तबाह कर दूंगा, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। और खुदावंद ने ऐसा किया भी, उसे उस मिट्टी में खुदावंद ने जलील और ख्वार किया, लेकिन उसे ये बताने के लिए कि मेरा इख्तियार मेरे पास है। लिखता है खुदा ने उसी मिट्टी में से इंसान को पैदा किया और उस मिट्टी के अंदर उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और इब्लीस के सामने खुदा ने ये ऐलान किया कि अब से जो इख्तियार तेरे पास था, ये इख्तियार अब मैं तुझसे लेकर इस इंसान को देता हूँ। और ये इंसान दुनिया के अंदर, बाकी मखलूकात के अंदर मेरी नुमाइंदगी करने वाला, मेरा जलाल जाहिर करने वाला, मेरी हम्द करने वाला, मेरी तारीफ करने वाला और मेरे इख्तियार के साथ इस कायनात के अंदर मेरा नुमाइंदा होने के लिए चुना गया है। इसलिए गॉड टोल्ड द सेटन, अब उसका टाइटल इब्लीस है, शैतान है, उसे क्या कहा गया? यू आर फायर्ड, आई हैव हायर्ड someone else, मैंने अब दूसरे को ये इख्तियार दे दिया। और ये इख्तियार इस मिट्टी को, जिसे इंसान खुदावंद ने कहा है, उसको दिया गया है। और देखिए एक जगह पर इंसान जब मसीह की तारीफ कर रहे थे, वो उसके लिए नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने आकर उससे कहा इनको रोक दे, ये तेरे नारे क्यों लगाते हैं? मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर ये खामोश हो जाएंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद अपनी क्रिसमस, खुदावंद अपनी तारीफ कहीं से भी ले सकता है। खुदावंद की ये कुदरत है, उसका ये इख्तियार है। वो पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा करता है, वो पत्थरों से अपनी तारीफ करवाना चाहता है। इसलिए इससे पहले कि वो पत्थरों को ये इख्तियार बख्शे, आज ये इख्तियार इंसान के पास, मेरे और आपके पास है। हम उसके नुमाइंदा, उसकी सूरत और शबीह पर खल्क किए गए हैं। इसलिए खुदावंद कह रहा है उस इख्तियार के साथ कौमों के ऊपर तुम हुकूमत करो। और आई गिव यू मॉर्निंग स्टार, मैं तुम्हें सुबह का सितारा देता हूँ। वो इख्तियार जो उस वक्त लूसीफर का था, दैट इज गिवन टू यू। आप इस इख्तियार के साथ आओ, इस दुनिया में चमको, आओ इस दुनिया को रोशन करो। मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं अपनी रोशनी तुम्हें देता हूँ। तुम इस दुनिया के अंदर एक्लीसिया, ईमानदार, तुझे इस तरह से यहाँ पर रहना है कि तेरी रोशनी के वसीला से, तेरे चमकने के वसीला से और दुनिया की तारीकी मिटती जाए, दुनिया की तारीकी मिटती जाए, इब्लीस के तारीकी के काम मिटते जाएं और रोशनी और नूर इस दुनिया का मुकद्दर बनता जाए। ये खुदा के दिल की ख्वाहिश है। इसलिए कोशिश करके देख ले, कोई तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन याद रखना, मैंने अपना इख्तियार तुम्हें दिया है। जो गलती इब्लीस ने की, वो गलती तुमने नहीं करनी है। हाँ, एक बार शैतान इंसान भी कर चुका अपनी आजाद मर्जी का गलत इस्तेमाल, और उसकी वजह से वो भी गिरा दिया गया उस मकाम से। लेकिन खुदा ने वापस उसको खड़ा करने के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। और जो यीशु पर ईमान ले आते हैं उन्हें कलीसिया और चर्च कहा जाता है। और चर्च वापस उस इख्तियार को जो खुदा का है वो वापस एक्सरसाइज कर सकता है और कर रहा है। इसलिए कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन हमेशा इस याद दहानी के साथ कि ये मेरी ब्लेसिंग, ये मेरा इख्तियार, ये मेरी खिदमत,
ये उसके वसीले से है। इट इज नॉट माई ओन, ये मेरी कुव्वत से, मेरी ताकत से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। जब तक ये याद रखेंगे, वो कह रहा है मैं तुम्हें कौमों पर, कबीलों पर, उम्मतों पर इख्तियार देता हूँ और तुम इस दुनिया के अंदर मेरे नुमाइंदा बनकर मेरी तारीफ के लिए, मेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल होते रहोगे। साइंसी एतबार से अगर मैं और आप गौर करें, ये जो मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा, साइंस कहती है इस सितारे की रोशनी अपनी नहीं है। सितारे जब आसमान में चमकते हैं, हर एक सितारे को खुदा ने रोशनी दी हुई है, लेकिन ये सितारा जो अक्सर सुबह में हमें मशरक की तरफ बड़ा नजर आता है, साइंस क्या कहती है बेसिकली ये सितारा नहीं है, ये सियारा है जिसका नाम वीनस है। वीनस सियारा सुबह को मशरक की तरफ अर्ली मॉर्निंग हमें नजर आता है, लेकिन साइंस ने ये साबित किया है कि इस सियारे की अपनी कोई रोशनी नहीं। जब रात की बाद चांद जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह को गरूब हो रहा है और सूरज जो है वो सुबह सवेरे निकल रहा हो, तो सूरज की पहली किरणें, पहली रोशनी इस सियारे पर जो वीनस है उस पर पड़ती है और वो आसमान के बाकी तारों में सबसे ज्यादा जगमगाता और चमकता है। लेकिन ये रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है। That light is given to him by the sun which is arising। ये रोशनी उसे सन से, सूरज से दी गई है। और अगर कलीसिया को सुबह का सितारा, ईमानदारों को सुबह का सितारा कहा गया है, तो देखिए जो रोशनी मेरे आपके पास है, गौर कीजिए, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द सन ऑफ गॉड। खुदा के बेटे के वसीला से ये रोशनी मुझे और आपको मिली है। सन ऑफ गॉड इज शाइनिंग इन अस। और देखिए पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसकी रोशनी, उसका इख्तियार मेरे और आपके पास है और वो मुझसे और आपसे मैनिफेस्ट होता है। दुनिया जब मुझे और आपको देखे तो वो खुदा के जलाल को देखे, वो मसीह को मुझ में और आप में देखे। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए इस दुनिया में हम चमके और जो कुछ हमारे पास है, हकीकत, खुशखबरी, सच्चाई का कलाम, ईमान, उसको हम थामे रहे। दुनिया की कोई कुव्वत, कोई कुदरत, इब्लीस की कोई ताकत हमें उससे रोक नहीं सकती। आइए एज अ चर्च, एज बिलीवर, एज ईमानदार हम खुदा के कामों में सबकत ले जाएं। हम दलेरी से कलाम की खुशखबरी को इस मुल्क के अंदर देने वाले बने। खुदा के उस मिशन को जिसके लिए कलीसिया को खुदा ने इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इस दुनिया में रखा है, खुदा का वो मकसद पूरा हो। और मकसद ये है कि कलीसिया खुशखबरी के कलाम को कौमों और कबीलों तक ले जाए और उनके वसीला से कौमों और कबीलों से लोग खुदा की बादशाहत में शामिल किए जाएं। इसलिए मत डरिए, मत घबराइए, मत खौफ कीजिए। मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके साथ है और उसने कहा है मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। आई मेक यू मॉर्निंग स्टार। और इस इख्तियार के साथ तुम दुनिया के अंदर मेरी नुमाइंदगी करने वाले हो। इसलिए दलेर हो जाइए। देखिए अपने प्रिविलेज को, देखिए अपने स्टेटस को। हम आम लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो खुदा के इख्तियार के साथ इस दुनिया में उसके नुमाइंदा हैं। इसलिए खुदा मेरे और आपके साथ है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, देखिए इस इलाके के अंदर आपकी कलीसिया के वसीला से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। आपकी खिदमत से, आपके किरदार से, आपके कामों से, आपकी तालीम से, आपकी थियोलॉजी से, आपकी बशारत से कौमें जिंदगी पाएं। आप मॉडल के तौर पर, मसीह के एलची के तौर पर उसका नूर, उसका इख्तियार लेकर इस दुनिया में, इस इलाके में, इस शहर में ऐसे चमके कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए दें। इस इज्जत के लिए, इस जलाल के लिए और आपकी बख्शी है, इस प्रिविलेज के लिए खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हम सारी ताज़ी इस नाम के देने वाले बने। आइए आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें तो उसने मुझे और आपको अपना इख्तियार दे रखा है। उसने मुझे और आपको हर तरह के हालात में संभाला है। कितनी ही कोशिशें कलीसिया को दबाने की, ईमानदारों को रोकने की इस मुल्क के अंदर भी और दुनिया के अंदर होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद
कलीसिया आज भी गालिब है। खुदा का इख्तियार उसके पास है, मसीह का इख्तियार उसके पास है, रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत उसे बख्शी गई है। इसलिए कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आइए नेक काम करने में हम सबकत ले जाएं, ईमान में हम सबकत ले जाएं, खिदमत में हम सबकत ले जाएं, रुपया पैसा देने में खुदा के कामों के लिए सबकत ले जाएं, खुदा के खादमों की इज्जत करने में सबकत हम ले जाएं। ओ अपनी गवाही में वो कौमों के अंदर जहां जहां खुदा ने मुख्तलिफ कामों में मुझे और आपको रखा है, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, ऑफिस में, मार्केट प्लेस पे, जहां जहां हम हैं, हमारे वसीले से खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। अपने खादमों को हम इज्जत देना, अपने खादमों के साथ खड़े होना, इस खिदमत में अपना हिस्सा अदा करना, इसको हम छोड़े ना, बल्कि इसमें सबकत ले जाने वाले बने। कोई रोकने वाला नहीं, कोई कोशिश के बावजूद भी हमें मगलूब नहीं कर सकता। हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं जो दुनिया पर मौत पर फातेह है, गालिब है। हमें भी वही गलबा, वही इख्तियार, वही पता जो है वो दी गई है। आइए इस दलील के साथ हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। 1 मिनट के लिए सब शुक्रगुजारी की दुआ कीजिएगा और खुदावंद में अपने जोर को महसूस कीजिए, खुदावंद की कुव्वत को महसूस कीजिए, उसके जलाल को अपने दरमियान पाइए, उसकी कुव्वत का तजर्बा ले लीजिए। और वो खास खिदमत जिसके लिए खुदा ने आपको इस कलीसिया का रुकन बनाया, वो खास खिदमत जिसके लिए आप आलमगीर तौर पर मसीह के बदन का हिस्सा हैं, वो खिदमत आपको वसीला से कायम हो। अपने खादम के साथ मिलकर और दलेरी से खुदा के काम को करना शुरू कर दीजिए। दलेरी से खुदा की अजीब की मुनादी को करते जाइए। और खुदा के खादम के वसीला से बरकत में आप बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। खुदा का जोर आपको मिलता चला जाए। आप दुनिया पर, आप जिस्म पर, आप खुदा शरीर पर आप गलबा पाते जाएं और खुदा का जलाल आपके वसीले से जाहिर होता चला जाए। खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे। मेरी गुजारिश है पास्टर आबिद से वो आए इसी मसा में शुरू में हम सब के लिए खुदा से ये दुआ करें कि खुदावन एज अ जज और एज इंडिविजुअल बिलीवर हमें ईमान में कायम रहने और वो खिदमत जो खुदा ने हमें दी है उसे ईमानदारी से अंजाम देने की तौफीक और पूर्ण बख्शे। आसमानी बाप, हम तेरे हजूर नहायत की आजी इंतसारी फरोजी के साथ तेरे कदमों में झुके हुए थे। उन बातों को तेरे पुराण हमने सुना, बरकत पाई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी इस ब्लेसिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम के लिए जो जिंदा और मुअस्सर तेरे पुराण उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खसूसन तेरे पुराण खुदा मैं अपने हाथ की भाई के लिए तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ। अपने खादम को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर ताकि तेरा बंदा और ज़्यादा आगे तरक्की करे, सरफराजी पाए और बहुत सारे भटके हुए लोगों बरगश्ता रूह को तेरी कुर्बत में लाने का बायस हो। आसमानी बाप, तेरे बंदा की जिंदगी में तेरा मकसद, तेरा मिशन पूरा हो। तेरे खुदा अपने खादम को और उसके गिराने को, उसके वालिद को तेरे खुदा बरकत दे। खसूसन अपने खादम के वालिद को शिफा अदा कर यीशु के नाम। हालेलुया। आवाज कम आई। हालेलुया। जोरदार तालियां आज के कलाम के लिए, जोरदार। आए हम एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। खुदा के बंदा के लिए, उसके गिराने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर शेख सैमुअल से वो सामने आए और शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदावंद बाप यीशु के नाम में तेरे सामने आते हैं, अपने मुबारक कहते हैं क्योंकि खुदा तो दीन खुदा है, तो कादिर मुझे बाप है। हम आज के दिन के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की खुदा सारी बरकत के लिए खुदा जो हमने तेरी गंध और तारीफ करने में खुदा पाई है, दर्श खुदा हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम खुदा जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे चेहरे की खुदा रौनक है। उस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। पूरे खुदा आज कलीसिया को अपने कलाम से खुदा भरा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।
यीशु के नाम में खुदा मिन्नत भी करते हैं कि जो कुछ खुदा हमने सीखा है कि हम तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को खुदा थामे रहेंगे और उसके एवज खुदा तू अपना इख्तियार हमें देगा, कौमों पर खुदा अपना इख्तियार हमें देगा और खुदा हमें सुख का सितारा देगा। हम तेरे कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। इससे खुदा जब तक हम सब ने, हर एक जान ने जो यहाँ पर मौजूद है, बरकत पाई। तेरे खादम के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसको खुदा आज तुमने बड़े जोर से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मिन्नत करते हैं खुदा कि अपने खादम को किसी जोर में, किसी कुव्वत में खुदा तू रोज बरोज आगे बढ़ाता जा और अपने नाम के लिए, रूहों को जीतने के लिए खुदा इस शहर में, इस मुल्क में कसरत से खुदा को इस्तेमाल कर। उसके घराने को खुदा बड़ी बरकत दे, हमेशा अपने साथ रहने का बेटा कर। बाकी सारे वक्त में खुदा तू हमारे साथ होना, इस उसी नाज़ के नाम में ये दुआ मांगते हैं। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में आज कुछ मैसेज दिया और अगले हिस्से में बढ़ते हुए खुदा के साथ मिलकर गीत गाएंगे और उसमें हमें जा खुदा के हजूर पेश करेंगे। जो कुछ भी तेरे पास है, दरिया जाए यीशु तेरे साथ है, गिरने ना देगा वो बचा लेगा, रखिए ही माँ के वो संभालेगा।
हालेलुया। आवाज कम आती है कि हम लोग तो बहुत अच्छे। हालेलुया। अब वक्त है कि हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें जिनके नाम हम तक पहुँचते हैं। भाई निराश के लिए और बेटे अलीशा के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में है, उसके लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ बीमारों की दुआ के लिए, अगर दिमाग में से कोई शख्स दुआ कराना चाहता है तो आप अपने कदमों पर खड़े रहें। तो मैं मिसेस पास्टर आवेश से दरख्वास्त करता हूँ वो सामने है और दुआ मिसेस पास्टर आवेश। तेरे हाथ में तंदुरुस्ती को नियमत से मार चला से बलिए से ताकि ये से तंदुरुस्त होकर तेरे नाम को इज्जत जब चला दे। चला से बलिए से तेरे कभी का हाथ को इनके लिए मांग लेते। चला से हमारा यकीन ईमान भरोसा तुझ यीशु पे। चला ली बाप अपना कभी का हाथ बढ़ा और जितनी प्यारी जाने तेरी पाक हजूरी में आई है उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा यीशु हम अपने घरों से खाली हाथ आए। खुदा यीशु हमारी झोलियाँ बरकतों से रहमतों से भरी अपने घरों को वापस लौटे। जलाल से कर यीशु राजा तूने हमारी सहायता मदद और रहनुमाई की है। जलाल से कर यीशु राजा मेरे भी शुक्रगुजारी से मेरा और खुदा का खुदा है। जलाल से कर यीशु राजा तेरे जितना भी शुक्र करेगा मैं मेरी छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल कर यीशु के नाम से मांगती सफर आमीन। हालेलुया। आज ज़रूरी ऐलानात हैं तो मैं पास्टर से दरख्वास्त करता हूँ आएँ और ज़रूरी सलाह करें। हालेलुया। मेरे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दीगरी बारात का शेड्यूल हर संडे नोट किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन 5 से 6 बजे शाम रिफात के ख़वातीन की इबादत करनी होती है। तो तमाम बहनों से दरख्वास्त की जाती है कि बहनें खुदावंद के घर में आया करें और इस रिफात के ख़वातीन का हिस्सा बने और खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। और इसी तरह मंगल के रोज़ रात 8 बजे से 9 बजे तक पास्टर लतीफ़ अहमद के घर की इबादत होती है। तो उसमें भी तमाम ईमानदारों को दावत दी जाती है कि वो आकर सब मिलकर खुदावंद की खिदमत में हिस्सा लें, इबादत करें और दूसरों के लिए बरकत का बायस करें। और इसी तरह फिर जुमे की शाम को पहले हम शिफाइया दुआ करते हैं, इबादत करते हैं जनता, फिर उसके बाद बाइबल स्टडी होती है। दूसरे भी नौजवानों से, बेटे बेटियों से, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है कि कोई भी
उम्र में आकर किसी भी उम्र के हिस्सा में आकर आप बाइबल मुकद्दस की स्टडी कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हफ्ता को स्क्वायर प्रैक्टिस होती है और ज़रूर स्क्वायर के बच्चे जितने भी हैं वो हफ्ते को आकर प्रैक्टिस किया करें ताकि अच्छे तरीक़ा से कुरान के घर में आकर प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छे नए से नए चीज़ लेकर आएँ ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बने और रूहानी जज्बा और बढ़ा दूसरों के लिए वक्त है। और इसी तरह संडे की बात 9 बजे से 11 बजे तक हमारा वक्त है, तो ज़रूर आप वक्त पर आया करें ताकि वक्त पर हम कुरान की खिदमत को करें, इबादत को करें, सब मिलकर हम कुरान से बरकत करें। तो इसी तरह अगर किसी ने अपने घर में इबादत का अहतमाम करना हो तो ज़रूर पहले रब्ता करें। जैसा कि हमारे घर में आज इबादत की लेकर हम चाहते हैं थोड़ा सा काम किया गया वो भी कर लें, तो सारी की सारी हम शुक्रगुजारी करें। बेटे की शादी हम कर रहे हैं तो उसकी भी शुक्रगुजारी पहले हम करते हैं, फिर बाद में भी जरूर करेंगे, ये नहीं कि हमने पहले करनी है। तो पहला इतवार जो है 7 तारीख में फिर आ रहा है, तो आप सब ईमानदारों को दावत दीजिए कि 7 तारीख को ज़रूर आप हमारे घर में आएँ और शुक्रगुजारी की इबादत 4 बजे होगी। 4 बजे का वक्त जो है 4 बजे ही समझे, फिर उसके बाद भी प्लान आपके होते हैं, हमारे भी हैं, किसी को मिलना होता है, संडे के दिन की छुट्टी होती है, तो ज़रूर आप उसमें आकर हमारे साथ अपनी बरकतों को शेयर करें। तो इसी तरह अगले संडे आखिरी इतवार है, तो जितने कमेटी के मेंबर हैं कुछ प्यार कर मीटिंग करेंगे, चर्च कमेटी की मीटिंग होगी, जितने मेंबरान हैं वो ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मीटिंग के वक्त होगा। तो आए हम आकर में हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। मैं पसंदीद से हम से दरख्वास्त करता हूँ वो स्टेज पर आए आज की सारी इबादत के लिए, हरियात के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत के लिए, आए हुए लोगों के लिए और खासकर मेहमान खादम के लिए खुदा अपने बेटे को और कसरत के साथ अपने खिलाड़ के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम सब अपने सर को उठाएं, सबसे मेरी गुजारिश है कि आपकी बात करें, अपने सर को झुकाते हुए खुदा की हजूरी को महसूस करें कि खुदा हमारा खुदा आज हमारे दरबार में मौजूद है, उसकी हजूरी के लिए उसका शुक्र करें, खुदा उनका शुक्र करें कि वो आज के सारे वक्त में हमारे साथ शाम हार रहा। उसने प्रस्तुत के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से हमें ब्लेस किया, खुदा का शुक्र करें। खुदा मेहरबान आसमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदा, तू भला खुदा है और खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज के इस वक्त और घड़ी के लिए कि तूने हम सबको अपनी हजूरी में छुटने का, अपनी हम को सताइश करने का फضل बख्शा। खुदा ये तेरा फضل है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, सारी ब्लेसिंग के लिए कि खुदा तूने एक जिंदगी को अपने बेटी को खुदा छुआ और अपने कलाम के वसीला से खुदा तेरे ब्लेस किया, बरकत दी। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तू सारे वक्त हमारे साथ रहा खुदा, तेरा तकिया पर लगा रहा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। इसी तरह खुदा उनकी बात के लिए लोग की हजूरी में एक के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंग को, बरकत को मांगता हूँ और जो बरकत आज तुझे हम सबको दी है खुदा फजल बख्शे की बरकत कायम रहे और हम दूसरे लोगों तक शेयर करने वाले हों। इसी तरह खुदा इस हजूर जाने के लिए तो खुदा तेरे लोग अपनी कमाई के साथ मुझे लौटाया, इसके लिए खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दिया। ये पैसा जहाँ पे इस्तेमाल हो खुदा तेरी गिरावत तेरा शुक्र तेरी तारीफ है। एक बार फिर खुदा पूरी तमाम हालत बात के लिए खुदा तेरे बंदा के लिए, हमारा खातमीन के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, अपने बंदे को और ज़्यादा बरकत देकर अपने बिलाल की कसरत से इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र तेरी तारीफ है। तेरा शुक्र तेरे खुदा खुदा। जब हम यहाँ से जाते हैं तो खुदा उन सब की बड़ी बात को बरकत और फिर इस वक्त पर अपनी हजूर में जुटने का हम सबको फर्ज बख्शे ताकि हम अपनी हजूर में खुदा जुटते रहें और खुदा उससे बरकत पाते रहें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, उसी के नाम से दरबार के पारे हैं। आमीन। सब खुदा की इस्माइल नाम से शुरू
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हमने अपने कर्जदार को माफ किया तू भी हमारे कर्ज माफ फरमा। आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि देख से, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह की की हिफाजत किया अब से लेकर हमेशा तक दुनिया भर के तमाम तस्वीर कलीसियाओं हज़रत जमात मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ होता है। आप सबको सलाम, खुदा आपको